تشریف لاتے ہیں مقرر ذیشان واعظ خوشلحان عظیم نکتہ دان پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عزیز طلبہ، معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، علم اور اہل علم سے سجی ہوئی آج کی یہ خوبصورت مجلس مل بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس علم سے جڑ کر کے میدان میں اترنے والے نئے جذبوں سے سرشار ہمارے بیٹے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے والدین کی دعاؤں، اساتذہ کی محنتوں اور اللہ کی رحمتوں سے یہ کاروان جو چل رہا ہے، اس میں قرب و جوار کے لوگ، ارباب انتظامیہ، معاونین، دامے درمے سخن قول فعل عمل شرکت، ہر بندہ جس نے جو کردار نبھایا ہے اللہ قبول فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید اور ساری احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، سابقہ شریعتوں کو دیکھ کے، اللہ کی سنتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ سارا دین اور پوری دنیا 5 چیزوں میں محیط نظر آتی ہے، اور یوں کہیے کہ کوزے میں ایک دریا بند ہے، اور وہ 5 چیزیں جس بھی انسان نے اپنی درست کر لی، ان سے تعلق صحیح کر لیا، میرا مالک اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ پہلی چیز آپ کی اصل ہے، سب سے پہلے آپ خود کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ جس نے خود کو نہیں پہچانا وہ کبھی رب کو نہیں پہچانے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے وجود میں اگر انسان نظر ڈالے اور جھاتی مارے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، میرا رب کون ہے۔ آپ کے وجود میں اللہ نے 4 چیزیں، میرے وجود میں 4 چیزیں رکھی ہیں، اور ان 4 چیزوں کو ہم خمیر کہتے ہیں، اور میں اکثر اس پہ زور دیتا ہوں کہ اس پہ توجہ دیا کریں۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے، شریعتوں کا خلاصہ ہے اور تیری میری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اپنی اصل پہ اگر کبھی مان تران کرنے کو دل کرے تو مٹی لے کے اس میں پانی ڈال کے ہوا چلا کے نیچے جو ہے آگ جلانا، جو اس وقت ملخبت بنے گا اسے دیکھنا وہ آپ ہے۔ یہ تو اللہ کا رنگ ہے کہ اس نے اس میں رنگ بھر دیے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ کے اش اش کرتی ہے۔ تو اپنی اصل پہچانی ہے، مٹی ہو،
मट्टी दुनिया को बीज देने पे 100 बीज देती है, फल देती है, दरख्त देती है, फसलें देती है, रंग देती है, मिठास देती है, मशरूबात देती है, माकूलात देती है। तो ये मिट्टी का एक रंग है। आप किसी एक मोहब्बत देने वालों को बदले में हजारों मोहब्बतें दे पाते हैं? किसी ने एक बार इज्जत दी, बार बार इज्जत देते हैं? अगर आपको किसी ने तकरीम दी है, बदले में तकरीम देते हैं। अगर आपके अंदर ये खूबी है तो मुबारक हो, आपका खमीर ठीक है, असल ठीक है। इसी मिट्टी का दूसरा पहलू भी है कि ये मिट्टी आपको खा भी जाती है, शक्ल बिगाड़ देती है, चमड़ी जो है वो पिघल जाती है, आपका गोश्त पोस्ट हजम कर जाती है, हड्डियां गला देती है, आपके वजूद की शक्ल बिगाड़ के रख देती है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे कल मिट्टी दे थल्ले। अगर आप अपने रिश्तों में, आपकी मिट्टी ऐसी है, आपका खमीर ऐसा है कि जो आपसे मिल गया जाये हो गया, जो मिल गया बर्बाद हो गया, जो मिला वो तबाह हो गया, जो मिला उसकी असल फसल नस्ल गई, जो मिला उसका तारुफ और पहचान गई, और वो मिट्टी में जैसे मिट्टी हो जाती है। आप सबको मिट्टी करके राख करके रख दें, ये भी इंसानों की खूबी है। तो हमें ये नहीं बनना। दूसरे नंबर पे तेरी मेरी असल पानी है। पानी सुकून है, पानी करार है, पानी प्यास बुझाता है। आप लोगों के लिए सुकून का बायस हैं। लोग मंबा समझ के, कुआं समझ के, नलका समझ के, नहर समझ के, दरिया समझ के, आबशार समझ के आपके पास चल के आते हैं। अगर नहीं आते, डरते हैं, दूर जाते हैं, तो क्यों? ये सोचना होगा। पानी सिलाब भी है, दूसरा रूप। पानी सुनामी भी है, पानी मौत भी है, पानी तुगयानी भी है। कहीं आप हर वक्त तुगयानी में, सिलाब में, सुनामी में, बर्बादियों में, लोगों को मिटाने में, काटने में, चीरने में और उनको रिश्ते तोड़ने में, भगाने में, इसी में तो नहीं लगे रहते? पानी के बुलबुले जरा ख्याल कीजिएगा। तीसरे नंबर पे तेरी मेरी असल के अंदर अल्लाह ताला ने हवा रखी है। हवा पूरी दुनिया का सिस्टम है। सबसे ताकतवर चीज विंड पावर है। दुनिया बर्बाद की गई, की जाएगी, एक फरिश्ते की फूंक पहाड़ों को रूई बना देगी, समंदरों में आग लगा देगी, निजाम शमसी गिराएगी। लेकिन तू तो कहीं ऐसा नहीं कि तेरी हवा और उसकी शिद्दतें और आंधियां ये लोगों को बर्बाद कर रही हैं, तहस नहस कर रही हैं, उनकी छतें उड़ा रही हैं, उनकी पगड़ियां, उनके कपड़े उड़ा रही हैं, उनको नंगा कर रही हैं। आपकी हवा वैसी होनी चाहिए जिस हवा को बादे नसीम कहते हैं, बादे सबा कहते हैं, जो थपकी देती है, जो सुलाती है, जो बंदे को मस्त करती है, जो सुकून, चैन, इत्मीनान देती है, जो फसलों को खंगालती है, हिलाती है, जो उनके अंदर एक रंग भरती है, जो पानियों में लहर पैदा करती है, जो उनकी बदबू को, स्मेल को खत्म करती है, जो फूलों को खिलाती है। क्या आप ऐसे हैं तो मुबारक हो। और चौथी चीज आग है। आग जरूरी है। इन्होंने खाना देना, देगा पकियां जी। हमने आग जलाई, गैस के ऊपर चूल्हा, देगें चढ़ाई, गोश्त कच्चा रह गया, मटन भी कच्चा, मटर भी कच्चे। हमने बावर्ची से पूछा ये क्या है? वो कहने लगा जी आग ही कोनी सी, गैस ही नहीं थी, लाठियां लाके नहीं दी, वो लाई थी तो गीली हो गई। आग बड़ी जरूरी है ये पकाने में। ये हरारत तेरे रब का एक सिस्टम है, तुझे पक्का करने में, तुझे पुख्ता करने में, तुझे बासलाहियत करने में ये गर्मी चाहिए। लेकिन सिर्फ 98 तक, 98 से ऊपर लेकर के गया मुआमला 104 तक पहुंचा, बुखार यार आर पार कर दिया जाएगा। अगर आप हर वक्त गर्म रहते हैं, और मशहूर है कि चीचा वतनी दा बाबा बड़ा तत्ता है, आ मुंडा बड़ा गर्म है, आ छोटू बड़ा जेड़ा ना जी हर वेले हीटर ही बने है, ये मीटर बना हुआ है, ये रेस हो जाता है, ये 1 मिनट में ऐसे गर्म। माजरत के साथ आपकी असल खराब हो चुकी है, खमीर खराब हो चुका है।
इसे दुरुस्त कीजिए। आग बड़ी अच्छी है, ये हीटर बने, सर्दियों में चाहिए, सुकून चाहिए, ये कभी रजाई में, कभी लिहाफ में, कभी किसी तरह इस हीट को जरूरी है, ये जिंदगी है, ये हरारत है, तो तेरी जिंदगी बाकी है। लेकिन ये चारों चीजें अगर इनके बुरे पहलू गालब आ गए, आप शरीर है, मैं हूं तो मैं भी शरीर हूं। अगर शर गालिब आ गया हम शरीर, अगर हमारे खमीर में खैर गालिब आ गई तो हमारे पास जमीर है, और जो साहिब जमीर होता है ये अपने असल अल्लाह से भी जुड़ा होता है। जो आप तौहीद सुन रहे थे, रब से शिरक नहीं करता, रब का दर नहीं छोड़ता, क्योंकि इसका खमीर खराब नहीं है, जमीर मौजूद है, ये इसे दर दर पे नहीं जाने देगा, खाक नहीं छानने देगा, अल्लाह का हक नहीं मारने देगा, ये बंदू का हक। और याद रहे, दुनिया में मखलूक में तेरी मेरी असल जो है वो अल्लाह की तौहीद के बाद वालिदैन है। और वालिदैन से मुराद सिर्फ अब्बू अम्मी नहीं है, अब्बू के अब्बू और उनकी अम्मी, अब्बू के भाई छोटे और बड़े, चचे और ताए, वो हमारे, उनकी बहनें, हमारी फूफियां, हमारी अम्मी के अब्बू अम्मी, हमारे नाना नानी, उनकी बहनें, हमारी खालाएं, उनके भाई, हमारे मामू, ये सारे मिलके वालिदैन हैं। याद रखिए, अगर आप अब्बू और अम्मी की इज्जत करते हैं मगर अपने घर में चचे या ताए को नहीं आने देते या फूफी को, तो याद रखिए आपके अब्बू को सुकून नहीं है। भले वो आपके साथ जितना मर्जी खेल ले, असल है अंदर से टूटे हुए हैं। और बंदा जब रब का दर छोड़ के दर दर पे जाता है तो तेरे रब को तकलीफ होती है, तेरी असल को उधर ऊपर तकलीफ, तेरी असल को धरती और जमीन पे तकलीफ, तेरी अपनी जात की असल खराब। जब तीनों असलें खराब हो चुकी हैं और तू इनको खराब कर चुका है और रुसवा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर याद रख कि तुझे जिंदगी बदलनी होगी। ये पूरा कुरान इसीलिए आया है कि तेरी रहनुमाई करे कि तू अपनी असल कैसे संभालेगा। भाई ये दूसरे नंबर पे फसल, दुनिया की फसल मालो मता है, कारोबार है, मंडियां हैं, और इंसान की जोड़े के हवाले से अल्लाह ने हर चीज जोड़ा बनाया है। वो इसकी जो फसल है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी है। याद रहे, फसल पे तो पहरे भी लगे, स्प्रे भी करें, खाद भी दें, पानी भी दें, रातों को भी जागे, दिन को भी देखें, हर मौके पे देखें। लैला आए तो खुश हूं, हम बाढ़ भी लगाएं, टनल भी लगाएं, मौसम का लिहाज भी रखें, कोहरे से बचाएं, गर्मी सर्दी से बचाएं, तहफ्फुज भी दें। तो जेड़ी घर दी फसल, मैंने एक पठान से पूछा, अगर कोई बैठा है तो माजरत के साथ गुस्सा ना करे, मैं कहा भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਰੇਟ ਬਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈਦਾ। मैं कहते बुढ़ी, उसको एक सूट साल में ले दे काफी है, वही धो के पहन लेता है। मिजाज बन गया ना, दुनिया की फसल पे इतना लगा रहे हो, इतना लगा रहे हो, इतना लगा रहे हो, कमाए जा रहे हो, बैंक बैलेंस भरे जा रहे हो, और घर में आपकी बीवी सारी जिंदगी शिकवों में, मुश्किलों में, तकलीफों में, परेशानियों में, बदनामियों में। तो दोनों फसलों का लिहाज रखना होगा। और यहां मैं ये भी इशारा कर दूं, ये जो हमारे बच्चे पढ़ के फारिग हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में अब्बा जी के और अम्मी जी के और चचा ताए के रहमो करम पे होंगे। फसल की चुनाव और उसके इंतखाब में डॉक्टर को, बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर ढूंढ देंगे। इंजीनियर डॉक्टर है, ये बेटा इंजीनियर है, बेटी इंजीनियर ढूंढ देंगे। लेकिन क्या मजाल, जो बेटा मदरसा पढ़ा हुआ है उसको बेटी कहीं मदरसा पढ़ी हुई ढूंढने में से। अच्छा हुण मदरसे पढ़ के मौलवी इदां दियां गल्लां, इसलिए तेनों मुस्लिम पढ़ाई सी बुखारी, शर्म कर यार।